बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा जा रहा है। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने व्यापम घोटाले को छोटा मुद्दा बताते हुए कहा कि पीएम को ऐसे छोटे मसलों पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। कानून मंत्री ने कहा है कि केंद्र कैसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में अपना दखल दे सकता है। See, certain issues which are so simple issues, so silly issues, that need not be answered by the Prime Minister. Our Honorable Home Minister, the ministers of the concerned departments, even my party President Amit Shah, they have all answered everything. For each and every silly issues the Prime Minister has to answer. It is not fair. Because if the issue is such a serious in nature, if it is in the larger interest of the country, then everybody should request the Prime Minister to answer. These are the very simple issues. These issues already answered by my senior leaders, including my party president. और ये बयान निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है कि कैसे व्यापम घोटाले को छोटा और सिली मसला बताया जा सकता है। पीएम मोदी से जब ऐसे मसले पर विपक्षी दल जवाब मांग रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले जब हमने सदानंद गौड़ा से बात की तो उन्होंने इस तरह के किसी भी बयान से साफ इनकार किया। No, I never said like that. Say for each and every silly issues also, the opposition is asking Prime Minister to reply. It is not fair. But sir, did you mean to say that Vyapam is a silly issue? Because it. No, I clearly said that. The death suffering, everybody has to take a serious concern on this. Very sentence I said. Basically, what did you say? That for each and every, the opposition is asking for PM's statement, which is not statement. All the silly questions also oppositions are asking reply for silly statement. Silly questions also they are asking that PM, our ministers of the concerned department, they are answering for each and everything. That is what I said. So what do you feel about Vyapam? And where Vyapam incident is concerned, the death toll is going. So everybody has to take a serious concern on this. Law and order is a state subject, so state has to look into the matter. Do you think on Vyapam PM should speak or centre should intervene? No, I said if the state government feels that investigation by some central agency should be done, then we have to take up that issue. And the matter is under, I specifically said that the matter is under investigation, so making any statement on that issue, it should not have an impact on the investigation. और ये सफाई दे दी अपनी तरफ से सदानंद गौड़ा ने। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमिताभ, जिस तरह से सफाई दी सदानंद गौड़ा ने, लेकिन अगर व्यापम जैसे मसले को छोटा मसला करार दिया जाएगा तो कटघरे में पार्टी और केंद्र सरकार भी खड़ी होती है। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि इस बात को लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं, मंत्री सवाल उठा रहे हैं, मंत्रियों के बीच खेमेबाजी हो रही है, कोई कह रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे में जब एक देश के कानून मंत्री से ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उन्हें सिली या तुच्छ सवाल कहना कहीं से जायज नहीं है, उचित नहीं है और इसकी निंदा, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि व्यापम घोटाले में अब तक 47 मौतें हो चुकी हैं, 46-47 मौतें हो चुकी है। ये छोटी बात नहीं है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई राजनेताओं के नाम आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसे में इस सवाल को सिली क्वेश्चन कहा जाए, तुच्छ प्रश्न कहा जाए, तो निंदा की जानी चाहिए और उम्मीद की जा रही है कि आला कमान भी इस बात की नोटिस लेगा। लेकिन उन्होंने सफाई दे दी है कि उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा था ये गंभीर मसला है, तो जाहिर तौर पर वो जल्द ही संभलकर अपनी बयान से पलट गए। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि दरअसल व्यापम के मसले पर सवाल जब उनके सामने आया तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया। See, certain issues which are so simple issues, so silly issues, that need not be answered by the Prime Minister. Our Honorable Home Minister, the ministers of the concerned departments, even my party President Amit Shah, they have all answered everything. For each and every silly issues the Prime Minister has to answer. It is not fair. Because if the issue is such a serious in nature,
If it is in the larger interest of the country, then everybody should request the Prime Minister to answer. These are the very simple issues. These issues already answered my senior leaders, including my party president. और ये बयान था सदानंद गौड़ा का, जिसमें उन्होंने सिली और बहुत छोटा सवाल इसे बता दिया था। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, क्या प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद इसीलिए भी की जा रही है? सवाल क्या इसीलिए भी खड़ा होता है क्योंकि उमा भारती खुद इस तरह के संकेत देती हैं कि अगर किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवाई जाए तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, अगर एक चीज तो साफ है, उमा भारती ने ये नहीं कहा कि इसकी जांच दूसरी एजेंसी करती तो अच्छा होता, उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने इसमें साथ ये लाइन भी जोड़ी थी कि फिलहाल ये मामला कोर्ट के जांच एसआई द्वारा गठित की गई एसआईटी कर रही है। अगर वो फैसला कुछ लेती है तब आगे की जांच के बारे में फैसला किया जा सकता है उसी के निर्देश पर। अब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसके तमाम मामलों की सुनवाई होगी, तब आगे का फैसला होगा। लेकिन 2000 का भर्ती है और उसने कल वो ड्यूटी से गायब गैरहाजिर हो गया था। आज सुबह जब उसकी खोज खबर ली गई तो वो अपने कमरे में उसने फांसी लगाया हुआ पाया गया। इसमें कोई सुसाइड नोट अभी मिला नहीं है और जैसा कि लोकल स्टाफ से जानकारी मिली है वो शराब पीता था और कर्जे में भी उसकी लिप्तता पाई गई है। ये मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पहले कहे थे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरुण जेटली जी वो भी कहे थे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वही जो अपराधी हैं उन्हीं के खिलाफ अपराध उसका आरोप है और वही जांच कर रहे हैं, उन्हीं का प्रशासन जांच करेगा। ये कौन सी जांच है? सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सीबीआई जांच की बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कह रही है और इसी व्यापम घोटाले को लेकर भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी छोड़ें और व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। और आज कुछ अनूठे तरीके से युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। हाथों में कार्टून और उसमें लिखे कुछ संदेश। व्यापम घोटाले को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन का आज कुछ अनूठा तरीका। शर्ट उतार करके इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह के खिलाफ नारे लगाए और व्यापम के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। व्यापम घोटाले में मौत का यह सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 4 दिन में 4 मौतों से देश में सनसनी मची हुई है। सोमवार को ही सिपाही की मौत के बाद व्यापम में मौत का ये आंकड़ा बढ़कर 47 तक पहुंच गया है। इससे पहले सागर में एक ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी की खबर आई। 2 दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में पत्रकार अक्षय सिंह की मौत हो गई। 3 दिन पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत हो गई, जिनकी बॉडी दिल्ली के एक होटल में पाई गई। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़ी कहें इस पूरी घटना को या फिर किसी तरह से और संदिग्ध मौत, यह सिलसिला थम नहीं रहा और इसीलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।